guys, welcome back to my channel. My name is Maitri and today we are going to create this top. I call it Gem Gem top because honestly I created this top out of beautiful gems as well as beautiful diamonds. The inspiration of this outfit is from Pinterest and mostly this outfit is paired with the jeans, but today I'm going to pair it with something Indian style like ghagra, sari or something like karara. All the fabric as well as diamond details I will mention in the caption, so do check it out. And before going to video, I want to show you my outfit of today. This is my outfit. It's a Waitaki Fashions, which is trending right now. And now let's get back to the video. So I'm back in my home outfit और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि what I'm going to use for the pattern making. This is what I have for the pattern making. जो भी हमें बनाना है, for example साड़ी, skirt, जो भी होता है. This is the corset we are going to make. And these are the fabrics I'm going to use. एकदम unique outfit बनाऊंगी मैं इसे. I started to draw the pattern. Honestly, it was very confusing, but finally we made it together. Now cut it. I know आप सोच रहे होंगे why I didn't use the pink fabric. तो उसका रीज़न ये है मैं पर्पल डायमंड टॉप बना रही थी बट वो बीट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं थे. That's why pink. After that I stitched everything together and used the longest sleeves to loop the corset from the back, and the base of the top is ready. हाय गाइस, आज हम हैं डे 2 में और हमारा ऑलरेडी बेस रेडी हो चुका है और अब हम बनाएंगे डायमंड्स. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है बिकॉज इसलिए उसे मैंने जिम जिम टॉप नाम दिया है. I'm going to use these diamonds, a pink, dark pink, butterfly and a cute bow got from Amazon. Links are mentioned in the description. हार्ट शेप के डायमंड के लिए मैंने ये स्टिकर लिया बिकॉज मुझे और कहीं नहीं मिले हार्ट शेप वाले और जो थे वो भी बहुत महंगे थे, तो आई डिसाइडेड टू बाय द स्टिकर्स और इसे ही मैं डायमंड का चेन लगा दूं. I'm also going to DIY these diamonds, and for that I will be using canvas paper. सबसे पहले iron it down neatly so it will stay flat. Then I'm going to use B7000 glue. इससे diamond easily stick हो जाता है. After that, take a diamond lace and stick that lace to the border as shown in the video. Once it completely dry, cut out neatly and look, the gorgeous diamond is ready. I made 100 of this. It almost took my day. And now it's finally time to stick the diamonds to the base. आई वॉज यूजिंग मैनिक्विन नाम के लिए क्योंकि काम तो मेरा जमीन पे ही ज्यादा अच्छा हो रहा था. फिर मैंने बीट्स चिटकाना स्टार्ट किया एक एक करके, बट ओ माई गॉड द प्रोसेस वॉज सो हार्ड. लिटरली मैं हर बार फिंगर पे ग्लू लगा के प्लेट से एक मोती उठा के उस पर फेविक्विक लगा के फिर बेस पे स्टिक कर रही थी. ये छोटा स्टेप बार बार करना पड़ रहा था और यही करते करते रात भी हो गई. हाय गाइस, स्वागत है आपका डे 3 में और आज हम कर रहे हैं टॉप और गेस व्हाट, आज का लास्ट दिन है और आज हम ये टॉप कंप्लीट करेंगे. वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पूरा रात भर मैंने ये टॉप कंप्लीट किया फ्रॉम बैक साइड बिकॉज फ्रंट साइड मुझे आपको कैसे बनाते हैं वो दिखाना था. एंड ये बनाते बनाते मेरे सारे बीड्स एज वेल एज वो डायमंड वाले बीड्स जो हमने DIY किए थे सबके सब खत्म हो गए थे और फिर मैं रात को वापस बैठी थी सब बनाने. ये रहा द बैक ऑफ द टॉप. इसका काफी फेविक्विक जैसा स्मेल आ रहा है. अभी ये फ्रंट साइड करेंगे हम, बैक साइड हो गया. जैसे मैंने कहा था कि मेरा काम फ्लोर पे ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, ये रहा प्रूफ. मैंने फटाफट से बीड्स लगाना स्टार्ट किया. ओके, मैं काम करती हूँ, स्पीड बढ़ा देती हूँ. फाइनली हो गया. अब इतना सा ही बाकी है, चलो ये भी फटाफट कर लेती हूँ. गाइस, फाइनली ये रेडी है. तड़ा, आई एम सो हैप्पी. Okay, so this is the officially last day to complete the outfit और आज है मेरे पास this fabric and we are going to make two bottom from it. First वाला जो होगा वो little bit of modern touch to it and second one is totally traditional. फर वाले स्कर्ट का आइडिया मुझे एक इन्फ्लुएंसर से मिला. ये रहा उसका पिक, बट आई गेव अप क्योंकि मुझे वो फैब्रिक मिल ही नहीं रहा था. बट देन थैंक्स टू मुंबई लोकल, मैं जब वापस आ रही थी ट्रैवल करके, आई सॉ अ सेलर जो स्कार्फ बेच रहा था. उसमें ये पिंक स्कार्फ था. OMG, आई फील सो लकी एंड आई मेड दिस. It's time to make Indian fishtail lehenga, one of my favorite style lehenga, जो काफ़ी सिंपल है
एंड उतना ही ब्यूटीफुल लगता है। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या बनाऊँ। Then I posted a story on Instagram. What should I make? Finally, this one wins. I used the same pattern we used for making the fur wala skirt. And ये कुछ ऐसा लग रहा था. Trust me guys, if you know a basic stitching, you can make anything. अब मैं रिमेनिंग फैब्रिक को लेके इसके लेयर्स कट करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द लेयर स्कर्ट। लॉन्गेस्ट स्टिच पे रख के वी विल क्रिएट रफल्स। मेरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है। ये देखो हो गया। अभी इसके ऊपर सेकंड लेयर भी आएगा और फिर ये ऐसे दिखेगा। आई मीन हाँ ऐसे। अभी अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा है बट I'll show you. And this is the layering of the skirt. tada! अब जो हमने शॉर्ट स्कर्ट बनाया था उसको अटैच करेंगे। गाइस मुझे इतना खुशी हो रहा है कि ये फाइनली बन रहा है। माई ड्रीम इज फाइनली गेटिंग completed. So guys, finally we are done with the outfit. I know मैं बाहर शूट कर रही हूँ because अंदर लाइट्स का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसा एकदम डार्क डार्क लग रहा है सब कुछ। So ये हमारा थोड़ा इंडियन टाइप वाला घरारा रेडी है। In total we have made 3 bottoms. So उसमें से अभी ये वाला रेडी है and I'm going to pair this with this. This is Ken actually and this is the घाघरा। और ये बहुत प्रिटी दिखता है, बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल स्टेप ऑफ द स्कर्ट मुझे पता चला कि काफी फैब्रिक बच गया एंड कम ऑन मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती, सो आई स्टार्टेड मेकिंग बेल फ्लावर स्कर्ट। Hello guys, and look, this is what I created. As I told you in the first video that I'm going to make 2 bottoms of it. Also my both bottoms are ready, but just because of the heavy rain I cannot go out for the shoot. तीनों की तीनों एक साथ बनाएंगे and then we are going to shoot. और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एनीवेज आई स्टार्टेड मेकिंग स्कर्ट एंड ये स्कर्ट बनाने के लिए आई लिटरली यूज मैथ्स। वैसे तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल के डेज में, जब तक वो सिंपल था, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड तक। ओके बैक टू द टॉपिक। मैंने एक एक करके सारे डायमंड्स लगाना स्टार्ट किया एंड आई यूज डबल साइडेड टेप फॉर दैट। आप सोच रहे होंगे आई एम यूजिंग डबल साइडेड टेप, ज़्यादा नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज टेप लगाने के बाद आई हैव यूज फेविक्विक एज वेल। आई यूज इलास्टिक फॉर द वेस्ट बैंड और सेम प्रोसेस से आई मेड मैचिंग स्लीव्स एंड सब स्टिच किया। फाइनली सब रेडी है और कल हम जाएंगे शूट को। सो फाइनली अच्छी खासी धूप है और मैं भी रेडी हूँ और अभी हम जा रहे हैं बाहर। दिस इज द आउटफिट। नो वेट, आई विल शो यू। पीछे से कॉट सिटी और आगे से पूरा बाप रे, एक एक बीट जिसका खेल रहा है और मुझे भी थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। मैंने मेरी सारी चीज़ें पैक की एंड आई वेंट फॉर अ शूट एंड गेस व्हाट, उन्होंने नॉट अलाउ है बोल के कैंसिल कर दिया। ये हर शूट पे मेरे साथ होता है, बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा शूट घर पे किया, बट फिर भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, सो आई वेंट अगेन एंड दिस इज द रिजल्ट। Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. That's it guys, thank you so much for watching. Make sure to hit the like and subscribe button to my channel. कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा पसंद आया। Till then, bye.